Good evening, all. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I am the host for today. A very warm welcome to all of you on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning with Guruji ke Saath Gurwar that we started on 2nd June 2022. So today is our 6th lecture and I feel happy and blessed, actually honored to welcome our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. So I want to share a few words about sir. So sir has a vast experience of homeopathic practice of about 27 years up till now. He is the author of book Humanopathy that most of us have read. He has taken almost 300 seminars, more than 300 actually. As I always say, he is a visionary. He has a mission to educate more than 10,000 homeopaths, and especially in the rural areas. So, sir has made homeopathy very simplified, and I have one compliment that he has a very powerful skill of observation and an empathetic heart, which makes him a healer of the suffering souls. So we are blessed to have a guru, a guide and a friend like you, sir. Thank you for being with us. So friends, let's get ready for the power packed session today with our Guruji, Dr. Liaquat Namole, sir. Let's welcome with a round applause of. Thank you. Your voice is gone, beta. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Myself, what we face in day-to-day life. Exactly. मैं अभी भी अपने आप को होम्योपैथिक कंसल्टेंट नहीं समझता. I am still a homeopathic general practitioner and I like that. Okay. I think everybody. Every homeopath, please, please, there is a request. Please, अपना mic बंद रखे यार. Please, वो जरा. Okay. So every homeopath, I think, should be a general practitioner. Okay, should have the mind of a GP. I am telling you the truth because a general practitioner is actually like a family physician, right? GP is like a family physician. A family physician मतलब क्या कि जहां पर आपको पेशेंट्स आके अपनी घर की भी चीजें बताए, ठीक है ना? मतलब if the husband doesn't like Abby or the wife, if the wife doesn't like the husband, if the wife has a problem with the mother-in-law or the co-sister, है ना? मतलब उसकी अपनी देवरानी से जमती नहीं है, जेठानी से जमती नहीं है, सास से नहीं जमती, जो भी है, उनके बच्चे की सिगरेट पीने की हैबिट से अगर वो डर रहे हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये सब चीजों से वो जो परेशान होता है, ये सब चीजें वो अपने फैमिली फिजिशियन को आके बताता है, right? In fact, more than calling him a family physician, I call him family doctor. Okay, so a homeopath, it is necessary for a homeopath to be a family doctor. Okay, so he should be like a part of the family. Okay, so much so that when he goes to the patient's house, they should not treat him like a guest or somebody very great person as if he has come to their house. No, he should be treated like a family member. That is why I always like to call myself as a homeopathic general practitioner. Okay, now why I'm telling you this is because if you have this thing, if you get that position in the family of the doctor or the patient, then everything becomes very easy. Okay, now in general practice, what exactly do we face in day-to-day practice? How many GPs today? कितने हैं general practitioners जो जीपी करके होम्योपैथी कर आए या अभी भी जीपी कर रहे हैं या होम्योपैथी जीपी कर रहा हूँ. वेरी गुड. तो क्या आप कौन से पेशेंट्स जनरल प्रैक्टिस? यस डॉक्टर. तो आप कौन से पेशेंट देखते हो रोज ज्यादातर? आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? खांसी, सर्दी, बुखार, बच्चे देखते हैं. एग्जैक्टली, बराबर है ना? लेडीज ल्यूकोरिया. एग्जैक्टली, बराबर है ना?
जी सर। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ मैं। तो यही है कि अभी ज्यादातर हम लोग अक्यूट डिसीजेस देखते हैं, बराबर है, जनरल प्रैक्टिशनर्स। क्रॉनिक केसेस आपके पास ज्यादा नहीं आते। आई तो वो कभी कभार रोमेटिक अर्थराइटिस या गाउट की आ सकती है ना, राइट ना, गाउट और जी रोमेटिक सर। अर्थराइटिस आ सकती है, वो भी ज्यादा नहीं आती है। तो अभी मैंने समझने के लिए कुछ चीजों को उसको क्लासिफाई किया है, जैसे अक्यूट्स, मोर ओवर जीपीज दैट वी फेस, दैट वी हैव अक्यूट्स, राइट। तो अक्यूट्स में एक होता है सबसे मेन लाइफ थ्रेटनिंग, बराबर है। दूसरा होता है पेनफुल, पेशेंट विल कम टू यू फॉर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लाइक ब्लीडिंग, लाइक एमआई, है ना। दूसरा आएगा पेन के लिए, और तीसरा आएगा कॉमन कंडीशंस लाइक कॉफ, फीवर। देन चिल्ड्रन विल कम एंड फीमेल्स विल कम टू यू मोर ओवर फॉर डिस्मेनोरिया, राइट, अक्यूट एब्डोमेन। इसके लिए आपके पास में आएगी एज अ प्राइमरी हेल्प, बराबर है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पेन। तो पेन का लास्ट टाइम हमने काफी रूब्रिक्स कवर किए थे, बहुत फास्ट किए थे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे पेन की तरफ जाएंगे कि क्या क्या पेन में होता है। तो व्हाट पेनफुल कंडीशंस यू कम अक्रॉस, मोर ओवर एक डिस्मेनोरिया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है डिस्मेनोरिया में, एज डॉक्टर हनुमान हैज सेड कि ड्यूरिंग मेंसेस वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब, ओके, during menses we should not prescribe. The only remedy that can be given during menses is Naxomica. This is what Organon says, okay, unless that the condition is very severe and very excruciating, very much painful, then so now what we see in dysmenorrhea, हमने क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना है। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पेशेंट का नेचर जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है। तो सबसे कॉमन रूब्रिक क्या आता है, सबसे ज्यादा रिएक्शन क्या होता है पेशेंट का पेन के दौरान, Irritable. इरिटेबिलिटी, राइट। तो क्या अभी आप इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग रूब्रिक लोगे या इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग लोगे? Menses during. Pain during. कंफ्यूजन है ना। देखो अगर आप इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग लोगे तो उसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट है, एक ही कैमोमिला, दूसरी है नक्सोमिका। अब हम मेंसेस को मेटाफर से जैसे हम समझते हैं कि अ मेंसेस इज अ क्राई ऑफ द यूट्रस फॉर द लॉस ऑफ ओवम। तो ये इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग हम कब लेंगे, अगरचे कोई एम्बिशियस है, ओके, या कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट नहीं रह रहा है और उसके कारण अगर उसको चिड़चिड़ हो रही है तो उसको इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग ये रूब्रिक लेंगे। अदरवाइज हम लेंगे इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। दूसरा किसको लेंगे हम, कि जो काम कर रहा है लेकिन उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, बीच में ही खत्म हो जा रहा है, बीच में उसको फेलियर फेस करना पड़ रहा है, और ऐसे बंदे को अगर इरिटेबिलिटी हो रहा है मेंसेस में तो उसको हम इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग लेंगे। तीसरा कॉमनेस्ट किस में आएगा इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग, कोई बता सकता है कौन से कंडीशन में आएगा इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग? जिसको पीरियड्स अच्छे नहीं लगते। हाँ, मतलब जिसको अपना औरत बनना, फीमेल बनना अच्छा नहीं लगता है, बराबर है। मतलब those who are actually fed up of being woman, that is why they get irritated, है ना, they are totally irritated because of the menses। तो ऐसे लोगों में हम लोग इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग लेंगे। अच्छा, एक दूसरा, अब मेंसेस में पेशेंट क्या चाहता है, एक तो कोई पेशेंट में इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग, किसी में सैडनेस भी आ सकता है, दुख भी हो जाता है, होता है ना किसी लोगों को, हेलो, दुखी पड़े रहते हैं, बोलते हैं ना, कई लोग आते हैं आपके पास में। Yes sir. आप प्लीज ये रूब्रिक्स लिख के रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा कंडीशन आपको मिलेगा मैसेज में ये कि पेशेंट दुखी हो जाता है कि क्या पेशेंट क्यों आ रहे हैं सर, है ना, मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ बच्चा होने की, बराबर है, ये मेंसेस आ जाता है, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कोई चीज करने की लेकिन वो बीच में ही
कंसेप्शन नहीं हो रहा है और बीच में ही खत्म हो जाएगा, है ना, वो कंसेप्शलाइज हो ही नहीं पा रहा है, तो ये आएगा सैडनेस में आंसर, बराबर है। तो ये एक चीज, ये दो रिएक्शंस आपको मेंसेस में मिलेंगे। अब पेशेंट क्या चाहता है, ज्यादातर पेशेंट क्या चाहता है पेन में, हेलो, रिलीफ हाँ, Relief. Pain रिलीफ 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 तो चाहता है, और क्या चाहता है इसके wants to be अलावा, quiet. Rest. हाँ, Rest. रेस्ट दे दो, है ना। तो कॉमन चीज क्या आएगी फिर, रेस्ट डिजायर, बराबर है कि मेरे को थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, काम करना पड़ता है सर, तो मैं क्या करता हूँ ना कि थोड़ा आराम करती, जैसे ठीक लग जाए फिर काम से लग जाती, ये रेस्ट मतलब ब्रेक। और तीसरे क्या होती है, मेरे को एकदम शांति चाहिए होती है, बस पड़े रहने का मन करता है, इतना कमजोरी आ जाती है, बस पड़े रहने का मन करता है, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो क्या रूब्रिक आएगा, डिस्टर्ब हैज टू बी, है ना, Disturb. कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई भी बोले तो मेरे को चिड़चिड़ हो जाती है, तो डिस्टर्ब हैज टू बी। और एक होता है क्वाइट वांट्स टू बी, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। ये क्या चीज है, व्हाट इज रिपोज, रिपोज मतलब क्या, आपको पहले जैसा, रिपोज मतलब पहली वाली अवस्था में, शांति वाली अवस्था में जाना चाहते हैं, तो इसमें कॉमन रेमेडीज आपको मिलेगा। देखो अगर आप ये दोगे ना, ये 4 रूब्रिक अगर आप लोगे, उसमें से डिस्टर्ब हैज टू बी भी आपने अगर निकाल दिया, कोई डिस्टर्ब ना करे, छोड़ो, तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, रेस्ट डिजायर फॉर, क्वाइट वांट्स टू रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, बराबर है। तो ये 3 अगर आप लोगे ना, ये 3 रूब्रिक अगर लोगे, तो उसके अंदर आपको नक्स ओमिका, बेलाडोना, स्पॉन्जिया आएगा। अब बेलाडोना का रिएक्शन कैसे रहेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, क्या करेगा, श्रीकिंग में जाएगा, वो इसमें जाएगा, क्या कहते हैं उसको, नॉइज इंक्लाइन टू मेक में जाएगा, फटाफट उसको ट्रीटमेंट चाहिए होगा। और बेलाडोना का क्या प्रॉब्लम रहेगा, बेलाडोना को मेंसेस के कारण क्या आ रहा है, उसकी मजा के अंदर खलल आ रहा है, ठीक है। स्पॉन्जिया हाई स्पिरिटेड में जाएगा उसका, बराबर है। इन पेन स्पॉन्जिया का रिएक्शन क्या होता है, हाई स्पिरिटेड में जाता है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेशेंस में भी जा सकता है, परसिवरेंस में जा सकता है। नक्सोमी का चिड़चिड़ सारे घर को परेशान करके रखता है नक्सोमी, मतलब आप पेन के दौरान नक्सोमिका के साथ में बात करके बताओ, ओके। उसका चेहरा ऐसा रहेगा ना, मतलब इतना खड़ूस लगेगा कि कई बार आप नक्सोमिका को प्लेटिना के साथ में कंफ्यूज कर, आप जितने भी पेन के रूब्रिक लोगे, उसके जितने भी रिएक्शंस के रूब्रिक आप लोगे, उसके अंदर नक्सोमिका आपको बहुत बार मिलेगा, ओके। तो हैनिमैन ने बोला है कि ड्यूरिंग मेंसेस, तो मेरी ये एडवाइस है सबको कि एनी पेशेंट कमिंग टू यू, इवन इफ इट इज योर रेगुलर पेशेंट, do not prescribe whatever you are giving, like if the patient is on sulfur, if the patient is on Trastox, sepia, whatever. During menses, my advice is to give which remedy? Naxomica. Naxomica. Naxomica, that and too spongy. in 6 potency, that too in 6 potency, water dose. Okay, Naxomica 6 potency water dose. Water dose मतलब कैसा, 1 pill of Naxomica dissolved in a cup of water and take 1 spoon from that. And you give different types of essence with that. Okay. All right. ये so you have to take the case and then later on give the medicine. Like सब उसके reactions लेकर रखो, जैसे मेंसेस खत्म होते उसको दवाई दे दो, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर हैनिमैन ने ड्यूरिंग फीवर भी, अगर फीवर बढ़ रहा है उस दौरान मेडिसिन देने को हैनिमैन साहब ने मना किया हो, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द चांसेस इज कि क्या हो जाता है ना कि फीवर बढ़ जाता है, देयर इज अ चांस ऑफ एग्रीवेशन। तो व्हाट हैनिमैन से, जब फीवर उतरने लग रहा है तो उस दौरान आप दे सकते हो, जब उतर रहा है, पूरा उतरने को आ गया, ओके, तब आप दे दो, या 2 फीवर के बीच के इसमें दे दो। मैं देखा हूँ, इवन माय एक्सपीरियंस इज, इन पेडियाट्रिक केसेस नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव, ओके, बट इन अदरवाइज, okay, and again first 24 hours do not treat the fever, first 24 hours do not treat the fever, don't give anything for the fever for first 24 hours as far as possible, unless हाँ सेप्टिसेमिया है तो फिर नहीं, सेप्टिसेमिया में तो you have to give, okay. Now second condition is
रीनल कोलिक. नाउ रीनल कोलिक, ओके, बराबर ना. किडनी स्टोन के भी आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं लोग. हेलो, जनरल प्रैक्टिस में. yes sir, yes sir, जी जी yes सर. sir. हाँ, डिस्मेनोरिया के बारे में कोई डाउट्स है? नो सर. No sir. और कभी भी पेशेंट को ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए मेडिसिन मत दो. I am telling you whatever I do in my practice, whatever I have read, whatever I have understood, whatever I have studied from my teachers and on my own experiences also. If patients come to you बहुत ज्यादा bleeding हो रहा है, periods जिसका ये नहीं हो रहा है, फिर हिस्ट्री लो कि बहुत हमेशा जाता है क्या? Do not treat. You can't stop the bleeding. I am telling you, whether you use Verbascum, आप हेमोमेलिस वापरो, आप कुछ भी मदर टिंचर यूज करो, आप मेंसेस का ब्लीडिंग रोक नहीं सकते. मैंने देखा. तो वो करके एग्रीवेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, केस स्पॉइल होने का चांसेस ज्यादा होता है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. ओके, शिल्पा गोयल इज सेइंग कि dysmenorrhea in young girls. Yes, beta. Even in young girls, anything. During menses, no. During menses, give SM, explain them कि ये पीरियड हो जाने दो, उनको समझाओ कि ये बॉडी की गंदगी बाहर निकल रही है. ठीक है, आप समझाओ पेशेंट्स को कि ये पेशेंट्स के रिलेटिव्स को आप बोलो कि ये बॉडी इज थ्रोइंग आउट मेंसेस, बॉडी इज थ्रोइंग आउट द डर्ट और व्हाटएवर. थोड़ा सा आप समझाइए कि ये बदन में से निकल रहा है ड्यूरिंग मेंसेस एसएल. ओके, कई बार मैंने मैकफॉस भी देकर देखा हूँ 6x पोटेंसी में, 12x पोटेंसी में. इट डज नॉट हेल्प, इट डजंट हेल्प. लेटर ऑन endometrial thickness if severe after the menses, take the case, give the medicine after the menses. And you have to explain कि endometrial thickness अगर ज्यादा है तो आप मुझे बताइए कि मेंस क्या होगा, endometrial thickness कम कैसे होगा. अगर फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड जाएगा कैसे? अगर क्या कहते हैं उसको, पॉलिप है, पॉलिप जाएगा कहाँ से? आप मुझे बताइए. ब्लीडिंग से ही निकलता है सर. एक पेशेंट का थिकनेस सर मेरे साथ हुआ भी है. 25 mm का थिकनेस कम हुआ था 3.5. एग्जैक्टली, मैं वही बता रहा हूँ. तो ये आपको पेशेंट को काउंसिल करना होता है, समझाना होता है कि ये ऐसा ऐसा है, ये फिजियोलॉजिकल है, इसको निकलना जरूरी है, ये आपको समझाना पड़ेगा. मैंने देखा हूँ हिरसुटिज्म के केस में, खास करके यंग गर्ल्स में, हिरसुटिज्म में महीना महीना पीरियड चलते हैं, एक एक महीना जाता है. लेकिन हाँ, आपने हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, सबसे मेन बात. पेशेंट को हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, उसको आप फ्रूट्स ज्यादा खाने के लिए बोलिए, आप उसको लाइट डाइट, लेकिन व्हाट डू यू कॉल, लाइट बट एनर्जी वाला, है ना, जिसमें अच्छी एनर्जी मिले. जैसे आप उनको शीरकुरमा होता है ना, वो टाइप का जो देते हैं ना आपको खाना, वो ज्यादा खिलाइए. रवा वगैरह जिसमें कम इसके अंदर ज्यादा मिले, मनु के डाल के, काजू बादाम, जो भी पॉसिबल है पेशेंट का. ऐसा नहीं काजू बादाम का, गुड़ का भी, रवा, गुड़ का भी सूजी चलती है, कुछ इतना ये नहीं उसको, है ना. तो वो डाल के आप पेशेंट को खाने की आप एडवाइस दीजिए. If the patient has metrorrhagia with bulky uterus due to prolonged use of OCPs, then you have to take the case, my dear. You have to take. Why the patient took OCPs? You have to understand. Why not the husband using condom? Please remember. That means the problem is that if the lady has to use OCPs, that means the husband doesn't enjoy, or the husband is very irresponsible, right? This you have to understand. Or the lady has an extramarital affair, or it can be a unmarried thing. But even in unmarried, people use condoms, right? But the problem is with the husband. So you have to take the case. You have to take the feeling of the lady about the husband. So your choice becomes very simple. Whether the lady just gives herself to help कि बाबा चलो शादी हुई है, जाने दो, या फिर बोलती कि नहीं मैं उनको नाराज नहीं कर सकती. तो प्लीजिंग डिजायर, अगर वो बोलती है कि मैं हस्बैंड को नाराज नहीं कर सकती, नहीं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं उनको नाराज नहीं कर सकती है, तो प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज, आपका चॉइस 14 रेमेडीज में आ जाता है. उसके अंदर भी ये जर्मेनियम और सिलिका मारिनाटा वगैरह अगर निकाल दो तो यू आर हार्डली विद 10, 12, 13 रेमेडीज.
right? Most of the girls I have seen, they fall with, they are in pulsatilla. Pulsatillas do not oppose the husband, especially about this, that I have seen. Spongias also I have seen, okay, because they want to please. But spongias अपना काम करा के भी लेती है प्यार से, क्योंकि वो एडवांस भी होती है, पर्ट भी है ना? तो ये एक लीजिए। और लेडी के मन में एवर्जन डेवलप हो गया है ना? कुछ कुछ बोलती है कि जाने दो, जो करना है करो, मैं उनको कुछ अपोज नहीं करती। तो ये इंडिफरेंस हो जाता है, एवर्जन टू हस्बैंड आ जाता है। अगेन योर रेमेडीज बिकम वेरी 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 लेस, 18 रेमेडीज, राइट? तो ये और एक रूब्रिक आ जाता है, अब्यूज, बिकॉज शी इज बीन अब्यूज्ड, राइट? शी इज यूज्ड ओनली फॉर physical pleasure by the husband, so elements from abused being sexually, एक रूब्रिक उसके अंदर आपका आ जाता है। उसके अंदर भी कुछ 40-45 रेमेडीज है ना? husband has excessive sexual urge, exactly, that is what I'm telling you. It is a case of, forget about the side effects of the OCPs, treat the condition of the lady, what she feels. If she has developed hatred for the husband, then there are only 2 or 3 remedies that come. One is Adamus, another is Dalkamara, and I think third is 4 remedies are there: ammonium salt, Dalkamara, lac leolinum, and Luna. उसके अंदर commonest remedies Dalkamara and ammonium sulfuricum. So you are your choice becomes very small, right? एकदम narrow down हो जाता है आपका choice. So you are with ammonium salt, Dalkamara. I give Dalkamara so frequently now कि हफ्ते में कम से कम 2 प्रिस्क्रिप्शन मेरे Dalkamara के होते हैं. hatred for husband, anger towards husband, ये 2 रूब्रिक है. इसके अंदर आपको कॉमन आएगा Dalkamara, ओके? इतना इजी है वो. एंगर है, गुस्सा हो जाते हैं, एडामस, एड्स, Dalkamara, लूना, रूटा, सिंपल एकदम. इतने सिंपल इसके अंदर आप आ जाते हो चॉइस में. तो वो टेंशन में मत लाओ कि दिस इज क्या, whatever you call hypermetropia है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, whatever, तो क्या बोलते हैं उसको आप, मेट्रोरेजिया एंड ऑल दैट, है ना? मेनोरेजिया, मेट्रो मींस यूट्रस. Irregular. Between menses. नहीं, मेट्रो द वर्ड मेट्रो मींस यूट्रस. मेट्राइटिस बोलते हैं ना यूट्रस केस, ओके? तो मेट्रा इज फॉर यूट्रस, ओके? तो व्हाटएवर, तो इट इज दैट सिंपल, ओके? इट इज दैट सिंपल. आप यू कैनॉट हैव रेमेडी फॉर साइड इफेक्ट्स ऑफ OCPs बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑफ देम, नहीं का? वो नॉरिस्ट क्या क्या होता है, नॉरिस्टाइल वगैरह वगैरह, कुछ कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स दे यूज ना. एक रूब्रिक आप यूज कर सकते हो जनरलिटीज में जाकर, मेडिसिन एलोपैथिक अब्यूज ऑफ, एक ये रूब्रिक भी है, वो भी आप रूब्रिक ऐसे केसेस में यूज कर सकते हो, ओके? उसमें है. लेकिन आप इसमें से आपको मिसलीड होने का चांस होता है. बेस्ट क्या है कि वाइफ की हस्बैंड के लिए क्या फीलिंग है वो आप देखो, ठीक है? हाँ, एक रेमेडी और आती है कि जहां पर वो 2 रेमेडीज है कि रिस्पॉन्सिव विदाउट इंटरेस्ट. एक रूब्रिक है ना कि दे आर, व्हाट इज दैट रूब्रिक? रिस्पॉन्सिव विदाउट इंटरेस्ट, Responsive without interest. responsive without interest, responsive interest without. Interest without. There are only 2 remedies, carcinosin and Dalkamara. See, I told you there are only 2 remedies, carcinosin, Dalkamara. So Dalkamara comes so much common in all this, okay? आपको मैं बताता हूँ, आप अगर कोई लेडी का थोड़ा भी हस्बैंड के साथ पंगा है, सबसे पहले रेमेडी आपके मन में आने तो Dalkamara. आप अकेले में उनको पूछो, दीदी कि क्या है, आपको गुस्सा है, क्या इतना गुर्रा वगैरह तो नहीं हो गई ना आपके मन में, क्या हो गई है? आप इस तरीके से उनसे बात करो, समझ रहे हो ना? डू यू हेट हिम, ऐसा. मतलब आपकी आवाज के जो उतार चढ़ाव है, आपकी आवाज से जो सामने मैसेज जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट केस टेकिंग पार्ट, मतलब केस टेकिंग इज नॉट, यू आर नॉट लाइक ऐसे बैठे हुए और पेन और पेपर लेके मत बैठ जाइए ऐसा उसके सामने लेकर के, प्लीज. उससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत बुरा इंप्रेशन. ऐसे जस्ट टॉक लाइक दैट, ऐसे, डू यू हेट हिम? हाँ ना, बहुत
आता होगा ना मन में आपके उनके लिए कि नहीं गुस्सा वुस्सा नहीं आता है, डू यू लाइक हिम, इतना सिंपल। ओके, इतना। एनीबडी हु है, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो बात वो सब छोड़, फिक्सिंग मत करो। सी यू हैव टू ट्रीट द कंडीशन, you are treating the state. One more thing I want to add, like yesterday only I told one of the students, please remember, you have to treat the man in the disease. आप डिसीज सेंट्रिक आपका प्रिस्क्रिप्शन जाएगा ना, मतलब पेशेंट का डिसीज को लेकर का दृष्टिकोण, पेशेंट को डिसीज को लेकर का उसका एडेप्टेशन, वॉट एवर पेशेंट इज डूइंग फॉर द डिसीज, okay, and for whatever he is doing for the disease, for the pain, for his condition is very important. What he thinks about his condition, what is his worry about his condition, what is his mentality during the problem, regarding the problem, उसको छोड़कर आप मत जाइए। Your prime rubric, your prime symptom should be regarding the disease. Please remember, Hahnemann never said treat the man, treat the individual. No, he has said that individualization. But individualization मतलब क्या? Individual के अंदर की what is the uniqueness of that person? What Dr. Hahnemann has said, SSUP, striking, singular, unique, peculiar symptom. And man in the disease is what Dr. Hahnemann has said at the beginning of the organ. Please remember, they are very, very important aphorisms. A very important thing, treat the man in the disease. So about अगर कोई शराब भी पी रहा है, if you have a case of alcoholism, ask him about the alcoholism. क्यों शुरू किया? क्या सोचते हैं आप? शराब मजा आता है, दोस्तों के साथ बैठने मिलता है, जो भी है उसमें से जाओ। अच्छा, दोस्तों के साथ बैठने को मिलता है, मतलब क्या? दोस्त आपकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं? क्या आपको बचपन में दोस्त नहीं थे? क्या आपको बचपन में दोस्तों के साथ में खेलने नहीं दिया जाता था? क्या आपको दोस्तों से अलग बैठना पड़ता था? क्या आपके साथ लोग दोस्ती नहीं करते थे? क्या आपको आउटकास्ट किया हुआ था? क्या आपके घर के आपके बड़े भाई, बुजुर्ग, बहन, माँ आपको दोस्तों में जाने नहीं देती थी? क्या आपके दोस्त अच्छे नहीं थे? क्या आप जो एरिया में रहते थे वहां पर लड़के अच्छे नहीं थे? क्या आप जो स्कूल में जाते थे वहां पर बच्चे अच्छे नहीं थे? वहां का माहौल अच्छा नहीं था? क्या आपके इर्द गिर्द कौन रहता था? क्या आपके घर में आपके चचाजाद भाई बहन रहते थे? क्या आपकी मम्मी की और उनकी मम्मी की नहीं जमती थी, इसलिए आपके दो भाइयों के अंदर आपको कोई खेलने नहीं दिया जाता था? मतलब आपको बाद में दोस्तों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि कहीं वो एक चीज है जो आपकी डिससेटिस्फाइड है, वो कोना आपकी जिंदगी का सेटिस्फाइड नहीं है। समझ रहे हो ना? इतना आसान है। आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है जिसको सामने वाले का दर्द महसूस होता है। ओके, चलो लेट्स गो टू, ये मेंसेस में अपन अटक गए, इसमें आधा घंटा गया। अभी लेट्स गो टू रीनल। एनीथिंग अबाउट मेंसेस नाउ प्लीज? हेलो, anything about dysmenorrhea? I can continue this series of general practice for 5-10 lectures, no problems, don't worry. I'll teach you how to take how to do GP. Tell me anything about menses now? Any more questions? No. Okay. सर सिंगल डोज देंगे? 6C potency का एक ड्रॉप एक कप पानी में डालो, या एक गोली, just one pill in dissolve in a glass of water like this much glass of water, उसमें घोल के, ओके, सिर्फ इसमें से एक चम्मच दें, just 1 spoon from this, इसको घोलना है, सिर्फ 1 स्पून इसमें से पिलाना है पेशेंट, ठीक है? बाद में SOS after 4 hours, 4 to 8 hours you can repeat. ये पानी को संभाल के रखें, ठीक है? डिसॉल्व देना है। Sir, one Please, question. yes please. Hello. Sir, Yes, one of my patient has pain after a period gets over. She has lot of white discharge, lot of pain, lot of dribbling of urine or dysuria post menses. Post Around menses. 5-6 Okay. days. Yeah. Okay. Now tell me what is ल्यूकोरिया? ल्यूकोरिया हम लोग बोलते हैं, ल्यूकोरिया विरह के कारण होता है। विरह समझते हो ना? विरह क्या बोलते हैं उसको आप?
किसी से दूरी होती है, विरह होता है। हाँ हाँ Okay. विरह योग मतलब हाँ शोक शोक हम्म शोक शोक नहीं नहीं, शोक नहीं, शोक दूर विरह। रहना, जो पसंद है किसी से, उससे हाँ, दूर Separation. रहना, जुदाई, जुदाई जुदाई सेपरेशन। जुदाई, जुदाई, हाँ, जुदाई, नॉट सेपरेशन, जुदाई। शोक नहीं, शोक मतलब सैडनेस, वो लैमेंट हो गया, विलाप हो गया। विरह मतलब दो प्रेमी दूर, हस्बैंड वाइफ को दूरी होती है। ओके, तो उसके कारण होता है। अब क्या होता है ना कि एक वो चीज, और तभी उसको यूटीआई हो रहा है। यूटीआई मतलब एंगर टुवर्ड्स द पार्टनर। If the husband is having UTI, that means he is angry with his wife. The wife has UTI, she is angry with the husband. Okay, ये चीजें आपको मिलेगी। फिर आपको दोनों का आईपीआर निकालना है। वो लेडी का अब मतलब ल्यूकोरिया प्लस यूटीआई मतलब विरह के कारण ये गुस्सा है। मतलब ये लेडी चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको प्यार करे, इसके कारण वो गुस्सा है। तो शी इज फीलिंग निग्लेक्टेड बाय द हस्बैंड, शी इज लॉन्गिंग फॉर लव। So remedy can be stramonium, religion neglected by husband. Okay. एक्चुअली सर मैं बोलूँ वो केस के बारे में थोड़ा? बेटा बाद में उसका- ठीक पर्सनल है केसेस सर। बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके हाँ? ओके सर। अभी ऐसी चीज करेंगे जिसका सबको फायदा हो, है ना? ओके, सो लेट्स अनदर इज नाउ आफ्टर मेंसेस लेट्स गो टू रीनल। ओके, नाउ लेट अस गो टू रीनल कोलिक। बराबर है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड रीनल कोलिक? अ लॉट मेनी ऑफ यू, राइट? बराबर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो रीनल कोलिक के अंदर अगेन I have seen excellent results. Excellent result. रीनल कोलिक के अंदर ज्यादा क्या होता है? पेशेंट का रिएक्शन क्या होता है? बहुत कॉमन रूब्रिक में हमेशा यूज करता हूँ, बहुत बार यूज करता हूँ सर। देखो रीनल कोलिक के अंदर मैंने देखा हुआ है, पेशेंट क्या बोलते हैं कि सर इतना दर्द होता है कि मैं ग्राउंड पर क्या बोलते हैं, जमीन पे इधर से उधर क्या करता हूँ, रोलिंग करता हूँ। रोलिंग करते हैं। डायरेक्ट रूब्रिक है रोलिंग ऑन द फ्लोर। डायरेक्ट रूब्रिक है रोलिंग ऑन द फ्लोर। देयर आर ओनली 10 रेमेडीज: एसिटिक एसिड, आर्सेनिक, कैलकेरिया, सिक्यूटा, ओपियम, पीनिया, प्रोटियस, सल्फर, टेरेंटुला और एक और लैट्रोडेक्सस मैक्टन्स। बराबर? अब इसमें से कॉमन क्या है? आर्सेनिक, कैलकेरिया, ओपियम, सल्फर, टेरेंटुला। टेरेंटुला तो नाटक की वजह से रोलिंग ऑन द फ्लोर रहता है, उसका छोड़ दो। कॉमनेस्ट अभी आएगा आर्सेनिक, कैलकेरिया, सिक्यूटा, ओपियम, सल्फर। 5 रेमेडीज पे आप डायरेक्टली यूज करते हो। 5 रेमेडी अगर पेशेंट दर्द में इधर उधर रोल कर रहा है, इतना सिंपल होता है। अब उसके साथ में पेशेंट अगर अब्यूजिव है, चिट कर रहा है, तो आर्सेनिक की तरफ जाए। इतना सिंपल है। एक रोलिंग ऑन द फ्लोर एक होता है, एक पेचन होता है, एक जगह बैठ नहीं पाता हूँ सर, यहाँ से वहां जाता हूँ, वहां से वहां जाता हूँ, वहां से वहां जाता हूँ, तो क्या रेमेडी, क्या रूब्रिक आएगा? रेस्टलेसनेस, पेन ड्यूरिंग। इतना सिंपल आता है, ठीक है। और एक होता है कि क्या करना समझ में नहीं आता। देखा है आपने? एक चीज में देखा, क्या करना समझ में नहीं आता, मतलब कंफ्यूजन ड्यूरिंग द पेन ड्यूरिंग द पैरालिसिस ऑफ पेन। उसके अंदर आता है एक्ोनेट, कैमोमिला, कॉफिया, डल्कामारा, वेराट्रम, एपोक्साइनम। ठीक है। कॉमनेस्ट आई हैव सीन एक्ोनेट वर्किंग वेरी वेल इफ द पेशेंट डजंट अंडरस्टैंड क्या करना। सर ऐसा दर्द होता है ना कि कुछ क्या करूं समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। पेन में इधर उधर होता है सर में, क्या करना समझ में नहीं आता। फिर हम लोग बोलते ना, अरे तू मेरे पास में आता, मेरे पास क्यों नहीं, समझ में नहीं आता। फिर घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेके चल जाते और इंजेक्शन लगा देते। बराबर है? ये कॉमन चीज देखी अपन ने वहां पर एक्ोनाइट। ओके, अब आप बोले किडनी स्टोन में एक्ोनाइट सर बर्बेरिस नहीं, यस एक्ोनाइट। ओके, पेशेंट इरिटेबल है, गाली गलौज कर रहा है, आर्सेनिक। ओके, these are two very common remedies I have seen in and OPM में क्या रहता है ना कि पेन गया, उसको दे दिया, कोई टेंशन नहीं, सालों महीनों आएगा नहीं। घर वालों को चिंता होगी, अरे स्टोन है, चल रहा है। जब ऐसा उसको पता चलता है कि बहुत ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा वो उधर जाएगा।
ठीक है, this is what I have seen in kidney stone. One more thing I have seen in kidney stone is pain after menses, right? Have you seen pain and after menses? Hello, sorry, pain after urination is very marked, जिसके अंदर हमने सर्सापारिला देखा हुआ. अब सर्सापारिला का एक रूब्रिक है सैडनेस फ्रॉम पेन. अगर पेशेंट को दुखी लगे, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा हुआ है कि पेन at the end of the urination, right? That is what we have learned. Sarsaparilla, last drop very painful, right? That is what we have learned in Mathematica. But I don't prescribe on physicals. So if patient has pain at the end of the urination, plus if the patient is feeling sad, बहुत बोर होता है सर, बोर हो गया सर, ये दर्द से क्या मजा है सर, ये कितने बार कब तक चलता रहेगा सर, क्या मजा है सर, मतलब ये सैडनेस. ओके, तो सैडनेस फ्रॉम पेन. ओके, अरे ये सैम जरा बंद कर रहे हैं, तुम्हें म्यूट करा रहे, प्लीज आप लोग अपना बंद किए, म्यूट करा, डिस्टर्ब हो जाता है. देखो मेरा भूल गया. एनीवेज, सैडनेस फ्रॉम पेन, सर्सापारिला इज द रेमेडी. उसके अंदर फिर आपको डलका मारा, रूटा, सरसा, स्टेपिसाइक्लिन, ये भी रेमेडीज है. कालीफॉस भी एक रेमेडी है. ओके ओके, नाउ अगेन रीनल स्टोन में वन थिंग आई हैव हर्ड फ्रॉम द पेशेंट. क्या कॉमन सेंटेंस आपने पेशेंट में सुना होगा, कोई बोल पाएगा? व्हाट इज अ वेरी कॉमन सेंटेंस? What is a very common expression that we hear? सर रुक के पेशाब होता है. There is it obstructs Okay, urine. हेलो, Vomiting होता है. from urination. Vomiting होता है. Here with pain असते sir. Unbearable pain. और emotions. कम करो. Fear. Burning. nauseated feeling sir. ऐसा दर्द होता है जैसे मैं मछली की तरह तड़पता हूँ सर. सुना ये सेंटेंस आपने? Yes sir. हाँ, frequently बोलते हैं. हाँ, क्या रेमेडी दोगे आप? Arsenic. सेपिया. प्लीज रिमेम्बर, मछली की तरह तड़प रहा हूं पेशेंट, तू बता रहा हूं मेरे को मछली वाली दवाई दो. आई एम टेलिंग यू 90 out of 100 times your remedy will come right. हाँ, आप अभी बाद में, मतलब पेशेंट को अंदर से लग रहा है कि मैं मछली की तरह तड़प रहा हूं. पेशेंट के रिश्तेदार बोले तो फिर कुछ मतलब नहीं. पेशेंट के रिश्तेदार अगर बोले तो फिर देन यू कैन टेक टॉसिंग विद द पेन, है ना, एंग्विश विद द पेन, दैट यू कैन टेक, बराबर ना. एंग्विश टॉसिंग अबाउट, अगर पेशेंट के रिश्तेदार बोले तो अलग चीज है ना. एक रूब्रिक है ना, एंग्विश विद टॉसिंग, उसमें एकोनाइट, आर्सेनिक, कैमोमिला, कॉफिया है. लेकिन पेशेंट अगर बोले ना मेरी हालत मतलब सर मछली की तरह तड़पता हूँ, आप सेपिया देकर देखो, सीरियसली बोलता हूँ, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. ओके, यही चीजें मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से. ये जो है ना, इसको खोलो थोड़ा सा, इसको बंद रखोगे तो नहीं खुलेगा, इसको खोलोगे. देखो कली जो है ना, खिलने से पहले क्या होता है, खुलती है ना, तो पहले खुलोगे तो खिलोगे. इसको खोलो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा, ठीक है. ऑलराइट, फॉर रीनल स्टोन अवॉइड यूजिंग स्पेसिफिक्स. पेशेंट अगर गांव का है, आपको बता रहा हूँ मैं, और एक आपको मैं फ्रैंक चीज शेयर करता हूँ. आई प्रैक्टिस ऑन माइंड बट आई एम टेलिंग यू, अगर पेशेंट गांव का है तो आप उसको, हाँ, एक चीज मैंने देखा हूँ, सबसे कॉमन रेमेडी क्या यूज करते हैं अपन किडनी स्टोन में? Berberis vulgaris mother. वेरी गुड. बर्बेरिस कब यूज करना है? डायरेक्टली बताता हूँ, डायरेक्ट यूज करना है बर्बेरिस वल्गैरिस. अगर पेशेंट बहुत पेटू है, खादाड़ है, खाने पीने का बहुत शौकीन है,
ओके और उसके साथ अगर किडनी स्टोन है तो माय फर्स्ट चॉइस, मतलब ऑफ कोर्स आई टेक द केस, बट उसके अंदर गवर्नमेंट में रेमेडीज बर्बेरिस, गवर्नमेंट में बर्बेरिस है, 12 रेमेडीज है गवर्नमेंट के अंदर। उसके अंदर एलियम सटाइवा, मतलब अगेन आपका क्या कहते हैं उसको, लहसुन है ना, एलियम सटाइवा, बर्बेरिस, कैलकेरिस, कार्बोवेज, वो चाइना इपिकैक वगैरह सब कुछ है। तो उसके अंदर बर्बेरिस फल के अगर गवर्नमेंट है, उसके साथ नौशिया है और किडनी पेन है, किडनी स्टोन है, तो क्या रेमेडी आएगा? इपिकैक। यू थिंक ऑफ इपिकैक। समझ में आ रहा है आपको? तो हर Yes. किसी को बर्बेरिस मत दो, हर किसी को बर्बेरिस मत दो। पेशेंट आपको लाइकोपोडियम जैसा लग रहा है, राइट साइडेड रीनल स्टोन है, तो आप बिल्कुल लाइकोपोडियम। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर, किडनी स्टोन potency of choice is which potency? Higher, 1M. 200. Sir, 1M. 6C. 6. 6C. 6C. 6C repetition. 6C BD TDS for 3 days 1 week, कोई प्रॉब्लम नहीं, unless the remedy is like platina, Merxol, deep acting remedies है तो फिर 2-3 डोज देख के रोक दो। But like remedies, if the remedy is like lycopodium, pulsatilla, cocculus, okay, arsenic, carbovate, calcarea also you can give in repetitions. Luxomica, 6C, Ignatia, 6C, not 1M, Nasir, not 1M. Sir, Kidney extra stone, सेंसिटिव पेन रहेगा तो बहुत ज्यादा दर्द लेके आएगा तो भी 6. 6 दो। आई एम टेलिंग यू, सबसे ज्यादा प्रूविंग कौन से पोटेंसी में हुआ है? 3, 6, 12। तो ये सारे सिम्टम्स कौन से इसमें प्रोड्यूस हुए हैं? 3, 6, 12 में। तो जाएंगे कौन से पोटेंसी से? उसी से जाएंगे ना। इतना सिंपल है। मैं सबको एक चीज बताता हूँ हमेशा कि सिमिलिमम मतलब सिर्फ सिम्टम सिमिलरिटी नहीं है, उसका स्टिमुलस सिमिलरिटी भी तो देखना है आपको कि कितना स्टिमुलस था, 3 का स्टिमुलस था, कितना वोल्टेज, वो भी तो मैटर करेगा ना, कितने वोल्ट की दवाई दी थी। फिर आपको समझ में आएगा कि आप बोलो ना ये वोल्टेज है इसका, 3x इज अ वोल्टेज, 6x इज अ वोल्टेज, 30 इज अ वोल्टेज। हेलो, पोटेंसी मतलब वोल्टेज ना, स्टिमुलस वोल्टेज में जाता है ना, तो उसी वोल्टेज का दो, सिंपल। कितना भी पेन हो जाता है 6 से। हाँ, अगर से नहीं जा रहा है 30 दो, 200 से देने के बाद में भी आप उसको बाद में स्टोन निकलने के लिए लोअर पोटेंसी रिपीटेशन में 3 दिन के लिए दो, 1 वीक के लिए। माय एक्सपीरियंस and many of my students and colleagues have seen this, you give the potency, give the remedy in 6, it helps very much. Do not use mother tinctures if possible, okay? अगर पेशेंट विलेज का है तो आप 15 ml में या 30 ml में आधा H2O डालो और आधा आपको जो भी नियरेस्ट लग रहा है, सरसापरिला, जैसे बर्निंग अगर है तो सरसापरिला का मदर टिंचर दे दो, नौशिया अगर है तो ऑसिमम सैंक्टम का उसके साथ में मदर टिंचर दे दो। तो ऑसिमम सैंक्टम प्लस सरसापरिला मिक्स करके दे सकते। अगर बहुत ज्यादा पेशेंट चिल्लिम चिल्ली करता है, बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली अगर दर्द में कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है आपको दर्द से सबको, तो रेमेडी ऑफ चॉइस इन पेन इज व्हाट रेमेडी? टेल मी, आप पे से बाहर हो जाता है। Chamomilla. Chamomilla. Cantharis. Cantharis. The remedy of choice is Cantharis. So in such cases, you can give Cantharis 6C TDS, right? Or if you feel the patient is Chamomilla, if the patient is other remedy, but you don't want to take chances, तो कैंथरिस का मदर टिंचर आप डाइल्यूट करके पेशेंट के पास दे दो, 5 ड्रॉप्स एक कप में डाल के उसमें से एक चम्मच लेना। इन केस दर्द हो, समझा देना कि ये दवाई से स्टोन नहीं जाएगा, ये दवाई मैं आपको सिर्फ इमरजेंसी के लिए दे रहा हूँ। आपको जब मेफ्टल पास खाने का मन करे, साइक्लोपाम खाने का अगर जरूरत पड़ता है और रात है, दिन में अगर है मेरे पास में आ जाना, नहीं है तो आप ये दवाई ले लो। और उनको समझाओ कि देखो बोलना ये दवाई आप लोगे दर्द जाएगा, किडनी स्टोन नहीं जाएगा, स्टोन बढ़ेगा, बाद में किडनी डैमेज हो सकती है, तो आप दवाई रेगुलर लो। मैं देखा हूँ गांव के लोग पैसे बचाने के लिए ज्यादातर ये करते हैं, तो उनको आपको काउंसलिंग करना है, लेकिन हम पेशेंट को दर्द में भी नहीं रख सकते हैं।
सी आई लाइक टू बी वेरी प्रैक्टिकल. माइंड मेथड मतलब माइंड योर वर्क, not mental symptoms. Please remember, mind method doesn't mean that practicing on mind symptoms. No, you should mind your business, right? So मदर टिंचर देकर रखो, कोई हार्म नहीं उसके अंदर. ठीक है, थोड़ा लेगा पेशेंट आपके पास में आएगा. नाम मत बता. और ये जो बर्बेरिस के मदर टिंचर वगैरह लेकर आते, और प्लीज सबसे विनती है कि यूट्यूब पर जाकर वो फालतूगिरी मत करो कि मदर टिंचर्स के आपको पॉपुलर बनने के लिए कि ये दवाई इसमें काम करता है, ये यूरिक एसिड में ये दवाई काम करता है. ये प्लीज मत करो. आपको सबको विनती है, आपको सीखना है. मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं फ्री में पढ़ाने को तैयार हूँ सब लोगों को. मेरे पास में आकर बैठो मेरे क्लिनिक में, मेरे घर पर रहो, मैं खाना पीना भी खिलाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा. ये पागलपन मत करो, उसके कारण आप बहुत बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो. आप सप्रेशन में डाल रहे हो लोगों को. प्लीज, तो वो वाले वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे पब्लिसिटी के लिए मत करो भैया. लोग जो है ना राजीव गांधी को भूल गए, दिलीप कुमार साहब जो थे उनको भूल गए. समझ रहे हो ना, हम कुछ भी नहीं है. तो पॉपुलैरिटी के अंदर मत जाओ, पैसा कुछ नहीं होता है. धीरूभाई अंबानी साहब भी गुजर गए, है ना, जमशेदजी टाटा भी गुजर गए, और बड़े बड़े सब गुजर गए. पैसा कुछ नहीं करता है, कुछ काम का नहीं पैसा. Okay, please remember that. Okay, now coming to gallstone. Now renal stone understood. हाँ, renal stone में आपको क्या देखना है, पेशेंट का आपने कौन सी चीज पे फोकस करना है. किडनी मतलब क्या, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट. मतलब आपकी टेरिटरी में कोई भी आया है, आपको थैंक यू नासिर, आपको ये जानना है. एक मतलब किडनी स्टोन, किडनी डिसीज मतलब जलबिंग मछली. आपको जो चाहिए, जो चीज, उसमें से आपको निर्णय प्रक्रिया से आपको हटा दिया गया. आपको डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उससे आपको हटा दिया गया. मैं पीछे भी पढ़ाया था ना कि आप देखो बड़े बड़े मिनिस्टर्स वो क्यों किडनी फेलियर से गए. बिकॉज उन लोग को, आपको नाम नहीं लूंगा मैं अभी रूलिंग पार्टी में भी 2 बड़े बड़े मिनिस्टर्स किडनी फेलियर से गए, जबकि उनका किडनी रिप्लेसमेंट भी हुआ है ना. तो ये लोग को वहां से निकाल दिया जाता है कहीं. तो एक होता है स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपको मिल नहीं रहा है जो प्रेम चाहिए, वो नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो आपको वो जानने की कोशिश करना है पेशेंट के अंदर कि क्या है. एक, अगर ये आप नहीं जान पा रहे, कोई बात नहीं. पेशेंट का एडेप्टेशन ड्यूरिंग पेन लो, पेशेंट का रिएक्शन विद द पेन लो. जैसे पेशेंट, मैं बता रही कि ओपीएम के अंदर मैंने देखो बहुत कॉमन रेमेडी है किडनी स्टोन में ओपीएम. ये लेकिन ऐसा आएगा इतना, उसके चेहरे पे सच में टेंशन नहीं रहेगा, घर वाले टेंशन में रहेंगे, उसके बच्चे, बाप, जो भी है, बीवी टेंशन में. ये ऐसा मतलब ओपीएम मतलब वही ना, हम बोले हम तो चले, उसको कुछ लेना देना नहीं था. इज व्हाट आई हैव सीन ओपीएम टू बी. ओके, और कैंथर को जैसे बताया कि बहुत कंप्लेन करेगा पेन का, श्रीकिंग. प्लैटिना आपको सबको पता है, जैसे दवाई आपसे ले रहा है जैसे आप पर ऐसा नहीं कर रहा है. ओके, नाउ गॉलस्टोन. लेट्स गो टू गॉलस्टोन. आई विल टेक 2 मोर एंड विल फिनिश. बाकी के हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को लेंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ के थर्सडे को लेंगे. अभी हम चलेंगे गॉलस्टोन पे चलते. गॉलस्टोन के बारे में एक्सपीरियंस है आपको लोगों को है. गॉलस्टोन क्या होता है ना कि एंगर सप्रेस्ड, बहुत ज्यादा गुस्सा आपने रोक के रखा होगा, या तो आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा गुस्से वाले हैं. एक चीज है, तो सप्रेशन ऑफ एंगर बहुत ज्यादा देखा जाता है. गॉलस्टोन में मैंने देखा हूँ रेमेडी बहुत ज्यादा आती है, वो आती है कोलोसिन, दूसरी आती है स्टेफिसाग्रिया, तीसरी आती है लाइकोपोडियम. ये 3 रेमेडीज मैंने मेरी जिंदगी में बहुत बार गॉलस्टोन में प्रिस्क्राइब किया हूँ. सेपिया भी बहुत बार आती है, लेकिन ये 3 जो है, कोलोसिन में ऐसी सिचुएशन होती है कि उसको ऐसे इनका इंसान के सामने झुकना पड़ता है जिसकी औकात नहीं है उसके साथ. ठीक है, या मन मार के उसको झुकना पड़ता है ना. बेंडिंग डबल एम्बुलेट्स है ना कोलोसिन में. क्या है, व्हाई डज कोलोसिन फील बेटर बाय बेंडिंग डबल, मतलब उसको उतना झुकना पड़ रहा है, डबल बेंड करना पड़ रहा है. जैसे मेरे पास में एक आर्मी वाला बंदा था, उसको काम मिला बैंक के अंदर एटीएम का. अपना बैंक में ज्यादातर एक्स आर्मी के बेचारे जो होते हैं उनको क्या मिलता है काम, सिक्योरिटी का काम मिलता है. तो उसको मिला काम बेचारे को एक बैंक के अंदर. तो साहब क्या काम करते हैं,
क्या असर है? मैंने बताओ सर, मैं आर्मी में था, क्या सम्मान था। अब सर उठ के हर किसी को बोलना पड़ता है। ऑफिसर लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं सर, मैनर्स नहीं होता है, कैसे बात करते हैं, क्यों नहीं खोला, कैसे कर रहे हो, सीधे बैठो वगैरह ऐसी बात करती है। तो रेमेडी इज बोलोसिन। आई हैव सीन स्टेपिसाइग्रिया में रिएक्ट नहीं करेगा, मन में गुस्सा दबाएगा, ठीक है ना। स्टेपिसाइग्रिया में ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसका नाम नहीं खराब हो, इसलिए कि लोग उससे बड़े हैं, राइट। और एक चीज होती है स्टेपिसाइग्रिया में, एलिमेंट्स फ्रॉम पोजीशन लॉस। क्या करे सर, अपने वहां नहीं हो ना, वहां होता तो इनको बोलता था। एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस, ये भी मैं देखा हूँ। मतलब एकदम मायके की एकदम लाड़की लड़की, लाडली अकेली लड़की ससुराल में आके उसको उतना वो वैल्यू नहीं मिल रहा है। ओके, सब उससे रूडली बात कर रहे हैं, प्यार से बात नहीं कर रहे। तो स्टेपिसाइग्रिया को मैं देखा हूँ कि रूडली बात करना उसके आसपास बहुत हो रहा है। सर इनको बात करने की तमीज नहीं करवा, कुछ मैनर्स नहीं सर। मेरी ससुर बहुत रफ है, उनका ये होता, इतना नहीं बोलेंगे, इतना जल्दी नहीं बताएगा स्टेपिसाइग्रिया आपको, लेकिन ज्यादातर बोलते हैं कि बहुत रफ है सर, बात करना नहीं आता है, बहुत रफली बात करते हैं, मैं बीमार पड़ जाती हूँ सर इनकी बात करने, सेंसिटिव टू रूडनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, ठीक है। एंड पोली पोजिशन लॉस, ये चीजें मैं देखा हूँ बहुत ज्यादा स्टेपिसाइग्रिया के अंदर। ओके, और क्या बताया था मैं, विच अदर रेमेडी, लाइकोपोडियम को भी गुस्सा बहुत जगह पे दबाना पड़ता है, अगर उसको डोमिनेट हो रहा है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम नहीं सहन कर पाता है डोमिनेशन ज्यादातर। मदर टिंचर का कुछ फायदा नहीं होता है, मैं देखा हूँ सियानोथस में इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस में, पहले साल 2 साल में बहुत यूज करके देखा हूँ। मैं जो मदर टिंचर के बारे में बता रहा हूँ आपको, चूंकि मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ शुरू में, मदर टिंचर्स बायोकेमिक बहुत यूज कर चुका हूँ, कुछ फायदा नहीं होता इतना ज्यादा इन सब चीजों का। हाँ, मैंने साइटिका के अंदर देखा हूँ मैकफॉस 6x या 12x repeated very frequently, like 1 hourly, 4 pills 1 hourly, helps in quite many cases. Say around 50% cases में आपको साइटिका में नेफेलम एक स्पेसिफिक रेमेडी है, GNAPHALUM। नेफेलम का भी मैं बहुत यूज करता था, लेकिन अभी कई साल हो गए, नेफेलम की बोतल मेरी ड्राई हो गई, यूज भी नहीं किया मैं। मैकफॉस खैर मैं तो बायोकेमिक इतना यूज करता ही नहीं हूँ अभी, फाइफॉस वगैरह यूज करता हूँ एज ए टॉनिक, ओके, भी बच्चों में या प्रेग्नेंट लेडीज में। अदरवाइज आई डोंट यूज दैट इन पेन एंड इट हैज नॉट हेल्प मी। कभी कभार मन का टेम्पटेशन होता है कि मैकफॉस 6x दे दूं, 12x दे दूं, देकर देखा हूं, इतना मदद नहीं होता है। एक पहली बार शायद एक पिल देके आपको लगे भी, बाद में नहीं होता है, तो डोंट ट्राई, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटिका। ओके, साइटिका इज वेरी कॉमन। साइटिका आपको बहुत पेशेंट देगा और बहुत आशीर्वाद भी मिलेंगे, बिकॉज इट इज वेरी पेनफुल। एंड साइटिका अगेन पोटेंसी ऑफ चॉइस इज 6 के अंदर कितना आपको एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेगा साइटिका के अंदर। ओके, अनलेस वेरी हाई पेन देन यू हैव टू गो टू 1M 10M, बट मैक्सिमम टाइम्स साइटिका they will give you result in 6 potency। देखो एक बहुत अच्छा है रूब्रिक, रेस्टलेसनेस, पेन फ्रॉम, सीधा सीधा दिया है, पेन फ्रॉम साइटिक नर्व इन, रेस्टलेसनेस, पेन फ्रॉम साइटिक नर्व इन, एक डायरेक्ट रूब्रिक है, आपको बताता हूँ मैं। आपके मैक्सिमम केसेस इसमें निकल जाएंगे, एकोनाइट, आर्सेनिक, स्पाइजिलिया। अब आपको एकोनाइट बताने की जरूरत नहीं है, आर्सेनिक बताने की जरूरत नहीं, स्पाइजिलिया बताने का। स्पाइजिलिया का ये होता है कि लोग जो बोलते हैं वो चीजें उसको बहुत ज्यादा, दिस इज इन सिंथेसिस ट्रेजर रेमेडी, शंका। ओके, दीज आर द 3 रेमेडीज। सिंथेसिस रेमेडी आपको ये मोबाइल वर्जन में भी मिल जाएगा और इसमें भी है, सिंथेसिस ट्रेजर में यूज करता हूँ। उसके अंदर है रेस्टलेसनेस फ्रॉम पेन इन साइटिक नर्व, एकोनाइट, आर्सेनिक, स्पाइजिलिया। आई एम टेलिंग यू अगेन, काफी केसेस आपके इसमें निकल जाएंगे। ओके, अगेन देन अनदर रेमेडी व्हिच आई हैव सीन becoming very common in sciatica is bryonia, then is Rustox, सल्फर। ये बहुत मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन हमारे इसके साइटिका में आपको मिले हैं। ओके, अब इसकी अपनी अपनी ये होती है। सल्फर के अंदर हम लोग अफेक्टेशन बहुत बार देखते हैं, ज्यादातर हमने देखा हुआ है सल्फर अफेक्टेशन
दूसरा कंसर्न होता है सल्फर का इंडिपेंडेंस, कि मुझे किसी का मदद पसंद नहीं है। ये आपको बहुत बार मिलेगा साइटिक नर्व के अंदर। और दूसरों को कितना तकलीफ देना, ये भी एक चीज होता है। आर्सेनिक के अंदर भी होता है, कॉक्यूलस में भी होता है, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट में। और एक रेमेडी आती है ब्राइनिया। साइटिक नर्व का पेन मैं देखा हूँ, मोस्टली द रीजन इज फाइनेंशियल स्ट्रेन, फाइनेंशियल लॉस। ओके, तो एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लूजिंग मनी, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज अबाउट बिजनेस, ये अगर आते हैं तो ज्यादातर मैं देखा हूँ ब्राइनिया। एंड अगेन ब्राइनिया का तो आपको सबको पता है, द क्लासिकल मोडालिटी इज pain ameliorated by lying on the painful side and lying totally still. But I'm telling you, I have gone through sciatica. It is one of the very painful conditions I have seen in my life. Okay, तो sciatica में अगर आप रिजल्ट देते हो तो आप जिंदगी भर उस डॉक्टर का पेशेंट नाम निकालता है। मैं I have seen sciatica patient, you give the medicine और पेशेंट आपके सामने दर्द कम होता है। मैं अभी वीडियो बता नहीं सकता यहाँ पर, चूंकि यूट्यूब पर जाने वाला है तो वीडियो में हम नहीं डाल सकते, डालना मुझे नहीं पसंद है। उसमें मैं देखा हूँ इमीडिएट रिजल्ट मिलता है बहुत बार, 99% टाइम्स। ओके, दूसरा है अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल का तो आपको सबको पता है कि गर्दन की तकलीफ कब होती है इंसान को, जब उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो सबसे ज्यादा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली रेमेडी कौन सी है? स्टेपिसाइक्लिया। तो आई हैव सीन ऑलमोस्ट 90% of the cervical pain cases, they are helped by स्टेपिसाइक्लिया। अगर सर्वाइकल पेन है तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं शायद गलती नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक यूज करो, पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेपिसाइक्लिया 30 के आधे घंटे से 3 डोज दे दो, पेशेंट खुश हो जाएगा, फिर आप आराम से केस लेकर भी दे सकते हो। ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे स्टूडेंट्स का। मैं तो हालांकि केस लेता ही हूँ, मुझे तो भगवान की दया से जरूरत नहीं पड़ता है स्पेसिफिक यूज करने का, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स में देखा हूँ स्टेपिसाइक्लिया ये रेमेडी बहुत बार आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ओके, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। 1 घंटा हो गया। अगेन ऑन कमिंग थर्सडे आई विल बी डीलिंग विद द पेन। मैंने काफी लेके रखा था मैं, फीवर, इंजुरीज, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लाइक पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन, वायरल डिसीजेस, ये सब मेरे। हाँ चलो, 2 चीजें और मैं बताना चाहता हूँ। फूड पॉइजनिंग, अगेन स्पेसिफिक रेमेडी आई हैव सीन आर्सेनिक 6 सिंगल डोज। अपेंडिसाइटिस, ब्राइनिया 1M। In 90% of the cases, Brainia 1M will come as the remedy, is what I have seen. आप blindly Brainia 1M भी देकर आप पेशेंट को खुश कर सकते हो appendicitis में, is what I have seen. Okay, herpes zoster, Restox 1M. Okay, specific. आप केस टेकिंग करो, दूसरा रेमेडी आ रहा है जरूर दो, हाइवस आ रहा है, पल्सटिला आ रहा है, yes. But maximum times I have seen Restox 1M in 1 or 2 or 3 doses, patient आपका खुश होके जाएगा। Herpes pain, most painful condition of the skin like herpes zoster, I have seen responding very well to Restox. Just keep the watch because it is a nerve condition. Do not do suppressions. Okay, but maximum times I have seen Restox coming as a remedy in herpes zoster. Again, you know, wounds and bites of the stings, Leadenpal 200. Okay, appendicitis do not prescribe low potency because internal inflammation है, burst होने का chances होता है। Whenever the inflammation is of this thing, yes, ranunculus also comes. Yes, Dr. Shakil. But I have seen, मतलब देखो मैं स्पेसिफिक नहीं यूज करता और मैं पर्टिकुलर भी नहीं लेता, मैं तो माइंड पर देता हूँ, ठीक है। Whenever the inflammation is internal, okay, then you have to go higher potency क्योंकि बस्ट होने का चांस होता है। okay, so best is higher potency. निमोनिया में do not give 630, 200 1M above दो। छोटा बच्चा अगर है तो you can give 30. Hernia we will talk doctor next time, it is because it's a deep
It's again a very vast topic, just like we were talking about menses. Yes, somebody had asked me about PCOD. I will take a separate lecture on PCOD. Don't worry. Okay. Again on fever. Next lecture we will keep on fever. Okay, Suvarna. Because sir. it is. Thank you, sir, for the actually very, very practical session today. All have must enjoyed, and we will not miss these cases in general practice. And I hope all the general practitioners will move to homeopathy. Thank you very much. Thank you all of you on behalf of Ignited Minds by PHF, and keep joining. Thank you. Yes, our aim of this series, my aim now that I am president of Nasik Homeopathic Association, for 2 years, my aim is to turn at least 100 general practitioners to homeopathy from Nasik district. And from all over India, I am always there for the general practitioners. Anytime you can call me for any patient, any queries. My number is there. आपको YouTube पे भी मेरा नंबर मिल जाएगा, Google पे भी मिल जाएगा. आप मुझे कभी भी कॉल कीजिएगा, मुझे नहीं, मेरे सारे बच्चों को, मानसी, प्रणीता, नासिर, निशु, सबको आप, प्रियंका, इन सब बच्चों को आप कभी भी कॉल कीजिएगा. हम लोग आपके लिए है. हम लोग चाहते हैं कि मेरे भाई, मेरे बहनें, जनरल प्रैक्टिशनर, मेरा होम्योपैथिक डॉक्टर LIC की पॉलिसी बेचेगा नहीं, म्यूचुअल फंड बेचेगा नहीं. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी जनरल प्रैक्टिस करे. मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे होम्योपैथिक जितने भी हैं, मैं तो चाहता हूँ कि एलोपैथी भी होम्योपैथी प्रैक्टिस करें. मैं चाहता हूँ यूनानी बच्चे भी प्रैक्टिस करें होम्योपैथी. जब तक हमारे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स बढ़ते नहीं है, होम्योपैथी नहीं बढ़ेगी.